بسم اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم 10 ایسی عادات کا پتہ لگائیں گے جو خاموشی سے ہمارے روحانی تعلق کو ختم کر سکتی ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے عملی حکمت عملی پیش کر سکتی ہے، جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، 5 سے پہلے 5 سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے کی زندگی۔ اس گہری رہنمائی پر غور کرتے ہوئے آئیے ان عادات کو ختم کرنے کے لیے ایک سفر شروع کریں جو ان نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہماری صلاحیت میں رکاوٹ۔ آج ہم 10 عادات پر توجہ مرکوز کریں گے جنہیں ہماری زندگیوں سے خاموشی سے ہٹایا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے روحانی تعلق اور روزمرہ کے تجربات کو بڑھایا جا سکے۔ اسلام کی حکمت سے متاثر زیادہ توجہ مرکوز زندگی۔ ایک عدم مطابقت اور غلط ترجیحات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اعمال میں مستقل مزاجی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل سب سے زیادہ باقاعدہ اور مستقل ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹی متواتر عبادات اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی چھپٹی عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہمارے ہر کام میں باقاعدگی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، ہماری روزانہ کی دعاؤں سے لے کر کام اور گھر پر ہمارے وعدوں تک۔ لہٰذا اپنی زندگی کو ترجیح دیں تاکہ آپ کے ایمان اور ضروری ذمہ داریوں پر کم اہم سرگرمیوں کا سایہ نہ پڑے۔ اگر ضروری ہو تو ایک شیڈول بنائیں اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کے اعمال آپ کے روحانی اور دنیاوی اہداف کے مطابق۔ یہ نقطہ نظر نہ صرف آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتا ہے بلکہ آپ کو راست بازی کی طرف واضح راہ پر گامزن کرتا ہے۔ 2 حد سے زیادہ شکایات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کو فروغ دینے کے لیے گہرا مشورہ دیا، فرمایا، اپنے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کیونکہ یہ اللہ کے اپنے اوپر کیے گئے احسانات کو یاد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں ان لوگوں سے حسد کرنے سے اپنی توجہ ہٹانے کی ترغیب دیتی ہے جن کے پاس ان بہت سے طریقوں کو پہچاننے اور ان کی تعریف کرنے کے لیے زیادہ ہے جن میں ہم برکت۔ اکثر جب ہم اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو بہتر نظر آتے ہیں تو ہم شکایت کرنے کے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کمی ہے۔ تاہم ان لوگوں کی جدوجہد پر غور کرنے سے جن کے پاس کم ہو سکتا ہے، ہم اپنی زندگی میں کثرت کی صحیح معنوں میں تعریف کر سکتے ہیں۔ آئیے شکر گزاری کی عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی بڑی اور چھوٹی نعمتوں کا فعال طور پر اعتراف کریں اور شکر گزار ہوں۔ یہ عمل نہ صرف اللہ کو راضی کرتا ہے بلکہ ہماری زندگیوں کو بھی خوشحال بناتا ہے، منفی اور عدم اطمینان کو امن اور اطمینان کے احساس سے بدل دیتا ہے۔ 3 حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے خطرات کے بارے میں ان گہرے الفاظ سے خبردار کیا ہے، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حسد ہمارے دلوں کو خراب کر سکتا ہے اور ہمیں دوسروں کی برکات سے ناراض کر کے ہمارا اندرونی سکون چھین سکتا ہے۔ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں تلخ محسوس کرنے کے بجائے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کرنے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اطمینان حاصل کرنے پر توجہ دیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنے اور دوسروں کے لیے بھلائی کی خواہش کرنے سے ہم اپنے اچھے اعمال کو حسد کے تباہ کن شعلوں سے بھسم ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ کی جوانی اس سے پہلے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کی صحت آپ کے بیمار ہونے سے پہلے، آپ کا مال اس سے پہلے کہ آپ مالی مشکلات کا سامنا کریں، آپ کا فارغ وقت آپ کے مصروف ہونے سے پہلے اور آپ کی زندگی آپ کے مرنے سے پہلے۔ یہ حکمت فوری طور پر کام کرنے اور کاموں کو ترک نہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اپنے وقت کو دانشمندی سے سنبھال کر اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے فرائض کی ادائیگی سے ہم اپنے موجودہ حالات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مستقبل کے چیلنجوں کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنی ذمہ داریوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہمیں کھوئے ہوئے مواقع پر افسوس نہ ہو۔ 5 حسد۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی ایمان کی پرورش کے لیے ایک گہرا رہنما اصول فراہم کیا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ تعلیم معاشرے میں بے لوث اور باہمی فلاح و بہبود کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو کامیاب ہوتے یا اپنی خواہش کے مالک دیکھتے ہیں تو حسد ہمارے دلوں کو عدم اطمینان اور ناراضگی سے بھر کر ان اقدار کو کمزور کر دیتا ہے۔ حسد کو جڑ پکڑنے دینے کی بجائے ہمیں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کی کوششوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم نہ صرف پیغمبر کی حکمت پر عمل پیرا ہوتے ہیں بلکہ ایک صحت مند، زیادہ ہم آہنگ کمیونٹی کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اس فعال محبت سے حسد کی جگہ لے کر ہم سچے عقیدے کے جوہر کے ساتھ زیادہ قریب سے صف بندی کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔
6 शुक्रगुजारी की कमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गहरा सबक दिया जब आपने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता इसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। ये हमें दूसरों की मेहरबानियों और कोशिशों को तस्लीम करने और उनकी तारीफ करने की अहमियत सिखाता है, क्योंकि ये खुद अल्लाह के तई हमारी शुक्रगुजारी का अक्कास है। अपनी जिंदगी में छोटी और बड़ी दोनों नेमतों को पहचानना बहुत जरूरी है। चाहे वो सादा खाना हो, अच्छी सेहत हो, खानदान और दोस्तों का ताउन, हर नेमत एतराफ की मुस्तहिक है। इन लोगों का खिले दिल से शुक्रिया अदा करने की आदत बनाएं जो आपके दिन में तब्दीली लाते हैं, एक मददगार साथी से लेकर मुआविन खानदान के रुकन तक। ये न सिर्फ मुस्बत ताल्लुकात को फरोग देता है, बल्कि एक ऐसा दिल भी पैदा करता है जो अल्लाह की अता करदा बेशुमार नेमतों को पहचानता और उनकी कदर करता है। 7 गुपशप और गीबत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की, गीबत इस वक्त होती है जब आप अपने भाई या बहन के बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं जो वो पसंद नहीं करते। ये हमें यह भी सिखाता है कि या तो दूसरों के बारे में मुस्बत बात करें या खामोशी के वकार का इंतखाब करें। 8 वक्त का ज़िया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंदी के साथ वक्त और सेहत की कदर को नेमत करार देते हुए फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिन्हें बहुत से लोग ज़ाय करते हैं, सेहत और नेकी के लिए फारिग वक्त। ये तालीम हमें याद दिलाती है कि हर लम्हा अल्लाह की अता करदा कीमती शय है, जिसका मकसद नियत और मकसद के साथ इस्तेमाल करना है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया ब्राउजिंग, बहुत ज्यादा टीवी शोज देखना, बेकार गुपशप में मशगूल होने जैसी गैर पैदावारी सरगर्मियों में वक्त ज़ाय करने के जाल में फंसना आसान है। ये आदत न सिर्फ हमारा वक्त ज़ाय करती हैं, बल्कि अक्सर हमें अपने रूहानी मकासद से अधूरी और मुनक़ते होने का एहसास दिलाती है। अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने दिनों को ऐसी सरगर्मियों से भरने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी ज़ाती तरक्की को बढ़ाती हैं, हमारे ताल्लुकात को मजबूत करती हैं और अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को गहरा करती हैं। इसमें कुरान के मुताला के लिए मखसूस औकात का तयन, बाकायदगी से नमाज और गौर व फिक्र में मशगूल होना, किताबों और लेक्चर्स के जरिए इल्म हासिल करना, कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लेना और खानदान और दोस्तों के साथ बामानी ताल्लुकात को फरोग देना शामिल हो सकता है। मजीद बरा ये जरूरी है कि हम अपने दुनियावी फराइज को अपने रूहानी तरीकों के साथ मुतवाजिन रखें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने ईमान पर कायम रहें। शूरी तौर पर यह चुनकर कि हम अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं, हम ज़ाय होने वाले मौके के पछतावे से बच सकते हैं और उसके बजाय फायदामंद कामों की मीरास बना सकते हैं। याद रखें, जिस तरह से हम अपना वक्त इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी रूहानी सेहत और जन्नत की तरफ हमारे सफर पर बड़ा रास्त असर पड़ता है। आइए हम इस नेमत का एहतराम करते हुए इस नेमत का एहतराम करें जो वाकई अहम है, ऐसी जिंदगी को फरोग देकर जो नतीजा खेज और रूहानी तौर पर फायदेमंद हो। 9 रंजिशें रखना अपने और दूसरों के लिए नुकसान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफी की अहमियत पर जोर दिया, हमें हिदायत की कि 3 दिन से ज्यादा किसी भाई से दूर ना रहें। रंजिशें रखना हमारे दिलों, रिश्तों और मजमूई फलाह व बहबूद के लिए नुकसानदेह नताइज का बाइस बन सकता है। रूहानी असरात से हटकर रंजिशें रखने के ठोस नफ्सियाती और जिस्मानी असरात होते हैं। जदीद नफ्सियात की तहकीक से पता चलता है कि मुआफी का ताल्लुक इज़्तिराब, अफसुर्दगी और बड़े नफ्सियाती अवारिस की निचली सतह से है। ये बेहतर जिस्मानी सेहत के साथ भी ताल्लुक रखता है, बशमूल कम ब्लड प्रेशर और बेहतर दिल की सेहत। गुस्से और तलखी को बर्दाश्त करना तनाव से मुतालिक मसाइल को जन्म दे सकता है, मुदाफ़ती निज़ाम को कमजोर कर सकता है और दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। अल्लाह को कुरान में सबसे ज्यादा मुआफ करने वाला करार दिया गया है और वो हमें दूसरों के साथ अपने मामलात में इस खूबी की तकलीद करने का हुक्म देता है। दूसरों को मुआफ करना न सिर्फ उन पर रहम करना है, बल्कि हमारे अपने रूहानी फराइज की तकमील भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मुआफी की तबलीग की बल्कि इस पर अमल भी किया, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके साथ और उनके पैरोकारों पर सख्त जुल्म किया था। उनकी जिंदगी ऐसी मिसालों से भरी हुई है जहाँ उन्होंने बदला लेने पर मुआफी का इंतखाब किया, इस तरह तकसीम को ठीक किया और एक जामे कम्युनिटी की तामीर की। जैसे जैसे हम मुआफ करना सीखते हैं, हम हमदर्दी, समझबूझ और हमदर्दी के लिए ज्यादा गहरा सलाहियत पैदा करते हैं, जो जाती तरक्की और कम्युनिटी की तामीर दोनों में बुनियादी खुसूसियात है। मुआफी एक सफर है, कभी कभी मुश्किल लेकिन हमेशा फायदामंद। जब हम मुआफ करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने और दूसरों के साथ सब्र करना याद रखना चाहिए। मुआफ करने वाले दिल की परवरिश करके हम न सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामीर करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगियों को सुकून और इत्मीनान से भी मालामाल करते हैं, जिससे एक सेहतमंद, ज्यादा हम आहंगी के लिए राह हमवार होती है। 10 खुद की देखभाल को नजरअंदाज करना। एक इस्लाम जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तंदुरुस्ती को समेटते हुए मुकम्मल खुद की देखभाल पर बहुत जोर देता है। ये जामे नुक्ता नजर, जिसकी जड़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है, इस बात को तस्लीम करती हैं कि हमारे जिस्मों के हम पर हुकूक है।
बीज जिस्मानी सेहत और ग़िज़ाइयत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुराक और ग़िज़ाइयत के लिए मुतवाज़िन तर्ज अमल की मिसाल दी। उन्होंने खाने में एतदाल की हौसला अफजाई की और मखसूस खानों के सेहत के फ़वाइद पर रोशनी डाली। खजूर, शहद और जैतून का अक्सर उनकी ग़िज़ाई कदर और दवाओं की खुसूसियात के लिए जिक्र किया जाता था। बाकायदा वर्जिश और सरगर्मी। जिस्मानी सरगर्मी रसूल अल्लाह के तर्ज ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा थी। उनकी मिसाल बाकायदगी से वर्जिश के जरिए सेहतमंद जिस्म को बरकरार रखने की अहमियत को जाहिर करती है, चाहे वो जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हो या महज चहलकदमी। उन्होंने जिस्मानी सेहत और मजमूई सेहत के दरमियान ताल्लुक पर जोर दिया। दिमागी और रूहानी सेहत। इस्लाम ज़हनी सेहत की अहमियत को तस्लीम करता है और जज्बाती इस्तेहकाम और वजाहत को फ़रोग़ देने के लिए मशक़ें पेश करता है। दुआएं, अल्लाह का जिक्र और कुरान से रहनुमाई हासिल करना न सिर्फ रूहानी मशक़ें हैं बल्कि ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए भी ताकतवर हथियार है। खुद एहतिसाबी और ज़ाती तरक्की। खुद एहतिसाबी खुद की देखभाल का एक अहम पहलू है। इसमें किसी के अमाल की जिम्मेदारी लेना और ज़ाती तरक्की के लिए कोशिश करना शामिल है। खुद शनासी और खुद की इस्लाह पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर मुसलमानों के लिए एक रहनुमा उसूल के तौर पर काम करता है, जो अपने किरदार और रूहानियत की नशोनुमा के ख़्वाहां है। फरागत और तफरी। इस्लाम संत परस्ती या खुद इनकारी की वकालत नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, बच्चों के साथ खेलना और फितरत की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता था। इन सरगर्मियों ने एक जरूरी तवाज़ुन फराहम किया और उसकी मजमूई बहबूद में अहम किरदार अदा किया। नतीजा, मुकम्मल तौर पर खुद की देखभाल को समझने और उस पर अमल करने से मुसलमान न सिर्फ अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं बल्कि पूरी और नतीजा खेज जिंदगी भी गुजार सकते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन मिसाल के तौर पर काम करते हैं। ये जाहिर करते हैं कि रूहानी और दुनियावी दोनों तरह की कामयाबी के लिए खुद की देखभाल के लिए एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र जरूरी है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत को अपनाने और उन आदात को ख़त्म करने से हम ज़्यादा पुरअमन और रूहानी तौर पर हम आहंग जिंदगी गुजार सकते हैं। ये तालीमात हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात को बेहतर बना सकती हैं और हमें इस्लाम की हिकमत के साथ मज़ीद हम आहंग कर सकती हैं। इन तालीमात पर गौर करें, मुस्बत तब्दीलियों को नाफिज करें और अपनी जिंदगी में आने वाली बरकत को देखें। इन आदात को ख़त्म करके और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने से हम अपने ईमान के साथ गहरा ताल्लुक पैदा कर सकते हैं और मज़ीद मुकम्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। अपनी आदात पर गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें और गौर करें कि आप उन पर अमल दरामद कैसे कर सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये तब्दीलियां। Visit Rishta360.com today and start your happily ever after. Lifetime free to use. With no hidden charges. Register today to find love forever. Thanks for watching. Leave a comment and let me know what you think.